مدینہ کی خاموش رات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی داستان سنانے جا رہے ہیں جو ایمان، بہادری اور اللہ پر مکمل بھروسے کی ایک مثال ہے۔ یہ کہانی اسلام کے عظیم صحابی، شیر خدا، بہادری اور علم کے پیکر حضرت علی بن ابی طالب سے منسوب ایک پراسرار واقعے کے گرد گھومتی ہے۔ مدینہ منورہ کی سرزمین اس وقت اسلام کے نور سے روشن ہو چکی تھی۔ نبی کریم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا تھا۔ ہر طرف اللہ کی عبادت، اخوت اور ایمان کی فضا قائم تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے۔ آپ کی پرورش اسلامی ماحول میں ہوئی۔ آپ نہایت بہادر، سچے اور علم والے انسان تھے۔ اسلام کی تاریخ میں آپ کا نام ہمیشہ بہادری اور عدل کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ مدینہ کا ماحول۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مدینہ منورہ میں مسلمان اپنی زندگی سادگی اور عبادت کے ساتھ گزارتے تھے۔ دن بھر لوگ محنت کرتے، نمازیں ادا کرتے اور رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ ایک رات مدینہ پر عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ مدینہ کی گلیاں سنسان تھیں۔ اسی رات حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی سے نماز ادا کر کے واپس اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ آپ کا دل اللہ کی یاد سے بھرا ہوا تھا اور لبوں پر ذکر جاری تھا۔ راستے میں ہوا کا ہلکا سا جھونکا چلا۔ اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کہیں دور سے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رک گئے۔ آپ نے غور سے ارد گرد دیکھا، مگر وہاں کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ غیر مرئی آواز۔ اچانک ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ آواز انسانی نہیں تھی، وہ گہری اور خوفناک تھی۔ آواز آئی، اے علی! حضرت علی چونک گئے، لیکن ان کے چہرے پر خوف کا کوئی اثر نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور اللہ کی پناہ مانگی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر موجود ہے اور ایک پوری سورۃ الجن ان کے بارے میں ہے۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہیں جو آگ سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، مگر انسان عام طور پر انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ سائے کا ظاہر ہونا۔ اچانک راستے کے ایک کونے میں ایک سیاہ سایہ حرکت کرنے لگا۔ ہوا تیز ہو گئی، درختوں کے پتے زور زور سے ہلنے لگے۔ پھر اچانک وہ سایہ بڑا ہونے لگا، جیسے کوئی لمبا قد والا وجود کھڑا ہو۔ حضرت علی نے مضبوط آواز میں کہا، جو بھی ہو سامنے آ جاؤ، مومن کسی سے نہیں ڈرتا۔ چند لمحوں بعد اندھیرے میں سے ایک عجیب مخلوق ظاہر ہوئی۔ وہ انسان جیسی تھی، مگر اس کی آنکھیں سرخ اور آواز گونجدار تھی۔ وہ ایک جن تھا، جن کا پیغام۔ اس جن نے گہری آواز میں کہا، اے علی! ہم نے تمہاری بہادری کے قصے سنے ہیں۔ حضرت علی نے جواب دیا، اگر تم اللہ کی مخلوق ہو تو یاد رکھو کہ ہر طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جن نے کہا، ہم تمہیں آزمانے آئے ہیں۔ حضرت علی نے سکون سے کہا، مومن کا امتحان اللہ لیتا ہے، مخلوق نہیں۔ جنات کی دنیا۔ جن نے ایک عجیب بات کہی۔ اس نے کہا، ہماری دنیا میں تمہاری بہادری کے قصے مشہور ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا تم واقعی اتنے بہادر ہو۔ حضرت علی مسکرائے۔ انہوں نے فرمایا، بہادری انسان کی نہیں، ایمان کی ہوتی ہے۔ خطرے کا آغاز۔ اتنا کہنا تھا کہ اچانک فضا بدل گئی۔ چاروں طرف سے عجیب آوازیں آنے لگیں۔ ایسا محسوس ہوا جیسے درجنوں مخلوقات ارد گرد موجود ہوں۔ جنات کے سائے درختوں کے درمیان حرکت کرنے لگے۔ یہ ایک غیر معمولی منظر تھا، لیکن حضرت علی نے خوف کے بجائے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کر دیں۔ جیسے ہی قرآن کی تلاوت فضا میں گونجی، ماحول بدلنے لگا۔ جنات بے چین ہونے لگے، ان کے سائے کانپنے لگے۔ ایک بڑا امتحان۔ اسی لمحے جنات کا سردار سامنے آیا۔ وہ پہلے جن سے بھی زیادہ طاقتور دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کہا، اے علی! اگر تم واقعی بہادر ہو تو ہمارا مقابلہ کرو۔ حضرت علی نے نہایت سکون سے جواب دیا، میں تم سے لڑنے نہیں آیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اگر تم ظلم کرو گے تو اللہ خود فیصلہ کرے گا۔ جنات حیران رہ گئے، انہیں ایسی جرت کی توقع نہیں تھی۔ ایک عجیب خاموشی۔ چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ ہوا رک گئی، درخت ساکت ہو گئے۔ پھر اچانک جنات کے سردار نے کہا، آج کی رات فیصلہ کرے گی کہ انسان زیادہ طاقتور ہے یا جنات۔ حضرت علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ، ایک تاریخی اور ایمان افروز داستان۔ اسلامی تاریخ میں بعض واقعات ایسے ہیں جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ایمان، صبر اور قربانی کی عظیم مثال ہوتے ہیں۔ انہی عظیم واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی، داماد اور اہل بیت کے اہم فرد تھے۔
उनकी जिंदगी बहादुरी, इल्म, अदल और तकवा से भरी हुई थी, लेकिन उनकी शहादत का वाकया इस्लामी तारीख का एक निहायत दर्दनाक और सबक आमोज बाब है। आज की इस वीडियो में हम हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी, खिलाफत और उनकी शहादत के वाक़ये को तफसील के साथ बयान करेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का तारुफ। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई। आप कबीला कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखते थे। आपके वालिद अबू तालिब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु बचपन ही से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में परवरिश पाते रहे। इसी वजह से आपको बचपन से ही इस्लाम की तालीमात और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत नसीब हुई। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु उन अव्वलीन लोगों में शामिल थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 10 साल थी। इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल करने वाले सबसे पहले नौजवान बन गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से बहुत मोहब्बत करते थे। हिजरत की रात का वाक़या बहुत मशहूर है, जब कुफ़ारे मक्का ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया तो अल्लाह के हुक्म से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत का फ़ैसला किया। इस रात हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोकर अपनी जान खतरे में डाल दी, ताकि दुश्मनों को ये गुमान रहे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद हैं। ये वाक़या हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की बहादुरी और वफ़ादारी की एक अजीम मिसाल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की बहादुरी। इस्लामी तारीख़ में हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को उनकी बेमिसाल बहादुरी के लिए भी याद किया जाता है। कई अहम जंगों में आपने इस्लाम का झंडा बुलंद रखा। जंगे बद्र, जंगे उहद और जंगे खंदक समेत कई मार्कों में हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने नुमाया किरदार अदा किया। जंगे खैबर में तो आपकी बहादुरी की मिसाल हमेशा के लिए तारीख़ में महफूज हो गई। रिवायत के मुताबिक जब खैबर का किला फतह करना मुश्किल हो रहा था तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अगले दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये झंडा हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को अता फरमाया और अल्लाह ने उनके हाथों खैबर फतह कराया। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का इल्म और हिकमत। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि बहुत बड़े आलिम भी थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के फ़ैसले निहायत हिकमत और इंसाफ पर मबनी होते थे। मुश्किल मसाइल में सहाबाए कराम भी उनसे मशवरा किया करते थे। खिलाफत अली। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को चौथा खलीफा मुंतखब किया। ये दौर इस्लामी तारीख़ का एक मुश्किल दौर था, क्योंकि उम्मत के अंदर मुख्तलिफ इख्तलाफात पैदा हो चुके थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपनी खिलाफत के दौरान इंसाफ कायम करने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने बैतुल माल के निज़ाम को दुरुस्त किया और लोगों के दरमियान अदल कायम किया। लेकिन इस दौर में कई सियासी और समाजी मसाइल पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से मुख्तलिफ ग्रुह बन गए। खवारिज का ज़हूर। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में एक ग्रुह पैदा हुआ जिसे खवारिज कहा जाता है। इब्तिदा में ये लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ थे, लेकिन बाद में उन्होंने इख्तिलाफ शुरू कर दिया। खवारिज का नज़रिया बहुत सख्त था और वो बाज़ मामलात में शिद्दत इख्तियार कर गए। उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु समेत कई सहाबाए कराम के खिलाफ मुखालिफत शुरू कर दी। इसी ग्रुह में से चंद लोगों ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। साजिश की इब्तिदा। खवारिज के 3 अफराद ने फैसला किया कि वो 3 अहम शख्सियात को कत्ल करेंगे। उनका ख्याल था कि ऐसा करने से मुसलमानों के इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे। ये 3 अफराद थे अब्दुर्रहमान बिन मुलजम, बरक बिन अब्दुल्ला और अम्र बिन बकर। इन लोगों ने मंसूबा बनाया कि वो एक ही दिन 3 मुख्तलिफ मकामात पर हमला करेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को कूफा में निशाना बनाने का मंसूबा अब्दुर्रहमान बिन मुलजम को दिया गया।
इब्ने मुलजम कूफा पहुंचा और उसने वहां हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ मंसूबा बनाना शुरू किया। कहा जाता है कि इस दौरान उसकी मुलाकात एक औरत से हुई जिसका नाम कताम था। इस औरत के खानदान के कुछ लोग जंग में मारे गए थे और वो हजरत अली से इंतकाम लेना चाहती थी। उसने इब्ने मुलजम को हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल करने पर आमादा किया। हमले की तैयारी। इब्ने मुलजम ने अपनी तलवार को जहर में बुझाया। वो कई दिन तक मौके की तलाश में रहा। वो जानता था कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु रोजाना फजर की नमाज के लिए मस्जिद जाते हैं। उसने फैसला किया कि वो फजर के वक्त हमला करेगा। वो रात 19 रमजान 40 हिजरी की रात इस्लामी तारीख की एक अहम रात थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु इस रात इबादत में मसरूफ रहे। रिवायतों में आता है कि इस रात हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी। सुबह फजर के वक्त हजरत अली मस्जिद की तरफ रवाना हुए। मस्जिद का मंजर। जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मस्जिद कूफा में दाखिल हुए तो उन्होंने लोगों को नमाज के लिए जगाना शुरू किया। वो हमेशा की तरह लोगों को नमाज के लिए बुलाते हुए आगे बढ़े। इसी दौरान इब्ने मुलजम मस्जिद में छुपा हुआ था और हमले के इंतजार में था। हमला। जैसे ही हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु नमाज के लिए खड़े हुए और तकबीर कहने लगे तो अचानक इब्ने मुलजम ने तलवार से हमला कर दिया। तलवार हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के सर पर लगी। हजरत अली शदीद जख्मी हो गए। रिवायत के मुताबिक उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के लबों से अल्फाज निकले, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। ये अल्फाज उनके ईमान और अल्लाह पर कामिल यकीन की अलामत थे। मस्जिद में हलचल। मस्जिद में मौजूद लोग फौरन जमा हो गए। इब्ने मुलजम को पकड़ लिया गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को जख्मी हालत में घर ले जाया गया। उनके जख्म बहुत गहरे थे और तबीबों ने बताया कि जख्म बहुत खतरनाक हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की नसीहतें। जख्मी हालत में भी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उम्मत को नसीहतें की। उन्होंने फरमाया, अल्लाह से डरो, नमाज की पाबंदी करो, यतीमों का ख्याल रखो, अदल कायम करो। उन्होंने अपने बेटों हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को भी नसीहत की कि इंसाफ को कभी ना छोड़ो। कातिल के साथ सलूक। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने यह भी फरमाया कि अगर मैं जिंदा रह गया तो मैं खुद फैसला करूंगा और अगर मेरी वफात हो जाए तो कातिल के साथ इंसाफ किया जाए और उसके साथ ज्यादती ना की जाए। ये हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के अदल और आला किरदार की मिसाल है। शहादत। 2 दिन तक हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु शदीद जख्मी हालत में रहे। आखिरकार 21 रमजान 40 हिजरी को हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु इस दुनिया से रुखसत हो गए। यूं इस्लाम के एक अजीम रहनुमा, बहादुर मुजाहिद और आदिल खलीफा ने जामे शहादत नोश कर लिया। उम्मत का गम। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की शहादत की खबर पूरे आलम इस्लाम में फैल गई। मुसलमानों को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु न सिर्फ एक हुक्मरान थे बल्कि इल्म, अदल और तकवा की अलामत थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की मीरास। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी हमें कई अहम सबक देती है। हक पर कायम रहना, अदल और इंसाफ करना, मुश्किल हालात में सब्र करना, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखना। उनकी शख्सियत बहादुरी और इल्म का हसीन इम्तजाज थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की शख्सियत। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु सादा जिंदगी गुजारते थे। वो हमेशा गरीबों की मदद करते थे और बैतुल माल से अपने लिए कुछ भी ज्यादा नहीं लेते थे। उनकी अदालत में अमीर और गरीब सब बराबर होते थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का मकाम। इस्लामी तारीख में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का मकाम बहुत बुलंद है। वो अशरा मुबशरा में शामिल हैं, यानी उन 10 सहाबा में से हैं जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी दी गई। वो अहले बैत के अहम फर्द हैं और मुसलमानों के दिलों में उनकी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। इख्तिताम। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की शहादत का वाकया हमें याद दिलाता है कि हक के रास्ते पर चलने वालों को आजमाइशों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सच्चाई, सब्र और ईमान हमेशा कामयाब होते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी और शहादत हमें सिखाती है कि एक मुसलमान को हमेशा अदल, तकवा और अल्लाह की रजा को अपनी जिंदगी का मकसद बनाना चाहिए।